हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਨਹਦ ਅਚੀਵਰਸ ਅਕੈਡਮੀ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਦੋਸਤੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਐਮਸੀਕਿਊ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਕਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਮਸੀਕਿਊ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਐਮਸੀਕਿਊ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਆਫ ਸਹਾਇਦਰੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਆਫ ਸਹਾਇਦਰੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀਜ਼, ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ, ਹਿਮਾਦਰੀ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਲਗਿਰੀ ਹਿਲਸ। ਨੀਲਗਿਰੀ ਹਿਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਹਾਇਦਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਹਾਇਦਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਅਰ ਡਜ਼ ਦਾ ਪਾਕ ਸਟੇਟ ਲਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਪਾਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਕ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਕ ਸਟੇਟ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੈਰੋ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਐਂਡ ਮਾਲਦੀਵਸ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਲਦੀਵਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਹੈ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀ। ਓਕੇ, ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਪਪੂਲਰ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਇਨ ਦਾ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੀ ਹੈ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਸੀ ਹੈ ਮਾਲਦੀਵਸ, ਡੀ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਡੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਦੀਵਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਆਈਲੈਂਡਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਏ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਬੀ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼, ਔਰ ਡੀ ਹੈ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, तो क्वेश्चन नंबर 4 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਓਲਡੈਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਿਊ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਲਡ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਵਲੀਜ਼ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਓਲਡ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਾਵਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਐਰਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਰਥ ਦੀ ਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਪੋਕ, ਐਰਾ, ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਰਾ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਪੈਲੋਜ਼ੋਇਕ, ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਇਕ, ਕੈਂਬਰੀਅਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਲੋਜੀਕਲ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਐਜ਼ੋਇਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਐਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ੋਇਕ,
इज नॉट वन ऑफ द एराज ऑफ द अर्थ zoological स्ट्रक्चर। हाँ जी ओके जी, सो ऑप्शन की आ गया ए। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरा ऑफ द ओरिजिन ऑफ कॉन्टीनेंटल शेल्फ। ठीक है, हुण जिवें समुंदर है तुहानूं पता ही होएगा कि समुंदर थल्ले पहला कॉन्टीनेंटल शेल्फ आती है, फिर इदां कॉन्टीनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टीनेंटल राइज, फिर समुंदर का नीचे वाला हिस्सा जिन्हों अबाइजल प्लेन कहते हैं जी, अबाइजल प्लेन। ठीक है दोस्तों, हुण पुछया की गया है कि आ जिहड़ी कॉन्टीनेंटल शेल्फ सीगी ये कदों बनी सी, जिहड़ी कॉन्टीनेंटल शेल्फ जो ओशन नीचे हुंदी है कदों बनी सी। तो ऑप्शन ने साडे कोल नियोजोइक एरा, पेलियोजोइक, मीजोजोइक ते कैंब्रियन। तो दोस्तों इसदा आंसर की है ए, नियोजोइक एरा दे विच कॉन्टीनेंटल शेल्फ जिहड़ी सी उहदा ओरिजिन होया सीगा, ये तुसीं याद रखना है। सो सही ऑप्शन की है तुहाडा ए। ठीक है दोस्तों, नैक्सट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाँ जी, इन्हां चों किहड़ी स्टेटमेंट जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इज नॉट करेक्ट मतलब कि हेठ दित्तियां गईयां स्टेटमेंट विचों ना आपां गलत जिहड़ी स्टेटमेंट लभणी है। ए ऑप्शन है द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, बी है द डीकंपोजर्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, सी है ट्रॉफिक लेवल्स आर द एनर्जी लेवल्स विद इन फूड, ते डी है इन डीप ओशंस प्राइमरी प्रोडक्शन इज आलमोस्ट हाई। ठीक है दोस्तों, हुण इत्थे की है कि जदों आपां इन्हां नूं पढ़दे आ सानूं पता है कि जिहड़े ट्रॉफिक लैवल हुंदे ने सब तो पहला उहदे च ऑटोट्रॉफ्स हुंदे ने, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सैकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर हुंदे आ। सो ऑटोट्रॉफ जो ने वो की हुंदे ने प्रोड्यूसर, दे आर नॉट कंज्यूमर। ठीक है, हुण इत्थे दित्ता की होया है कि द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर ऑटोट्रॉफ्स किया जाता, नहीं भी ये गलत है क्योंकि इन्हों तो हीटीरोट्रॉफ किया जाता। सो पहली स्टेटमेंट ही सानू मिल गई जिहड़ी कि गलत है। सो डीकंपोजर नूं सैप्रोट्रॉफ किया जाता, यह भी बिल्कुल सही है। ट्रॉफिक लैवल आर द एनर्जी लैवल विद इन फूड, ये भी बिल्कुल सही है। तो लास्ट वाला जिहड़ा हैगा आ जिहड़ी ऑप्शन हैगी वो भी बिल्कुल सही है। हाँ जी ठीक है, क्योंकि इत्थे हुण की दिता होया कि डीप ओशन दे विच प्राइमरी प्रोडक्शन यानी कि ऑटोट्रॉफ ज़्यादा हुंदे ने, बिल्कुल हुंदे ने, जिन्हां नूं आपां फाइटोप्लैंकटन्स कहने आ, ते उत्थे फोटोसिंथेसिस जो है वो भी बहुत ज़्यादा हुंदी है। ठीक है दोस्तों, सो ए ऑप्शन गलत है, बाकी दियां सही ने। तो आंसर की आ गया तुहाडा ए। ठीक है जी, नैक्सट देखते हैं आपां। नैक्सट क्वेश्चन की कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी अडॉप्टेड बाय डेजर्ट एनिमल्स ड्यूरिंग हॉटेस्ट एंड ड्राईएस्ट सीजन। दोस्तों तुहानूं पता होना कि जिहड़े कई जानवर हुंदे आ वो खास करके गर्मियां या फिर सर्दियां दे विच वो की करदे इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि चुप करके बह जाते हैं, एक साइड कोई गुफावां चल जाते हैं, कई मिट्टी दे विच छुप जाते हैं। तो उन्हां दे वास्ते खास कोई टर्म यूज़ करते हैं आपां। तो पुछया गया कि गर्मियां दे विच जदों जानवर कई लुक जाते हैं उदों उन्हां नूं आपां की कहने आ। ठीक है, सो ए ऑप्शन है बेसल मेटाबॉलिज्म, बी है डोरमेंसी, सी है एस्टिवेशन, या डी है हाइबरनेशन। हाँ जी, इन्हां चों किहड़ा अखर उन्हां जानवरां वास्ते आपां यूज़ करते हैं दोस्तों, ये तुसीं देखना है। तो बच्चे इत्थे इहदा आंसर जिहड़ा हैगा वो एस्टिवेशन है, क्योंकि जदों सर्दियां दे विच जानवर लुकदे आ उहनूं आपां हाइबरनेशन कहने आ। जदों सर्दियां दे विच जानवर लुक जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, फिर आपां उन्हां नूं हाइबरनेशन कहने आ। जदों गर्मियां दे विच ड्राई सीजन दे विच लुकदे ने असीं उहनूं एस्टिवेशन कहने आ। तो इहदा मतलब की है कि जो तुहाडा आंसर है वो आएगा सी, एस्टिवेशन इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सो आंसर की हो गया सी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9 कहता कि ब्रह्मपुत्रा रिवर व्हेन इट फ्लोज आउट ऑफ इंडिया इनटू बांग्लादेश इज कॉल्ड एज। हाँ जी दोस्तों, बहुत वधिया जिहड़ा हैगा आ वो क्वेश्चन है कि भाई ब्रह्मपुत्रा रिवर जिहड़ी हैगी है जदों बांग्लादेश च जांदी है तो इहनूं की कहंदे ने। देखो गंगा, हुण ये जे सपोज आपां इहनूं बांग्लादेश मन्नीए, गंगा भी एंटर करदी है इस साइड तो, इधरले पासों इहदे च ब्रह्मपुत्रा आउंदी है। ठीक है जी, सो गंगा दा बांग्लादेश दे विच नाम जिहड़ा हैगा आ पद्मा हो जाता है, और जिहड़ा ब्रह्मपुत्रा दा नाम जिहड़ा हैगा आ वो इत्थे आके हो जाता जमुना। इंडिया दे विच वाई तो यमुना हुंदी है, ते जिहड़ी बांग्लादेश दे विच जदों ब्रह्मपुत्रा एंटर करदी है उहदा नाम जमुना हो जाता जे तो। ठीक है जी, दोनों ये मिल के की बनाउंदियां ने मेघना, ते मेघना अगे फिर बे ऑफ बंगाल च एंटर करदी है। ठीक है जी, सो इत्थे भी की आ गया आंसर जमुना। ठीक है जी, हुण ऑप्शन साडे कोल सीगा बांगशी रिवर, महानंदा रिवर, जमुना रिवर ते या यमुना। सो आंसर की आ गया सी, जमुना रिवर। ठीक है जी, सो ए होगी ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश दे विच। तो सी इज द राइट आंसर, ये तुसीं याद रखना है बच्चे। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 10, एक ही कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज फेमस फॉर द, बच्चे इत्थे रीजन की जगह ते रीजन आना चाहिए है, रीजन।
ठीक है, केरा एरिया, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज फेमस फॉर द इंडेंजर्ड रिडली टर्टल। एक ना छोटे छोटे कछुए होंगे हैगे आ रिडली टर्टल्स, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੈਸਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਸਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਐਗ ਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਛੂਏ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਗਾਹਿਰ ਮੱਥਾ ए ऑप्शन, बी है सागर मੱਥਾ, सी है लक्षद्वीप, डी है अंडेमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗਾਹਿਰ ਮੱਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਓਲਿਵ ਰਿਡਲੀ ਟਰਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਏ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ क्वेश्चन नंबर 11, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਈਲਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਰੈਲੀ ਫॉर ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। तो ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੈਲੀ ਫॉर ਵੈਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, किस चीज़ के नाल रिलेटेड सीगे। ए है जी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बी है बायोडाइवर्सिटी, सी है रीसैटलमेंट ऑफ डिसप्लेस्ड पीपल, ते डी हैगा जी लॉस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चरल नहीं, एग्रीकल्चर, ठीक है। सो इन्हां दे विचों किहड़ी चीज़ दे नाल ओह रिलेटेड सीगा रैली फॉर वैली प्रोग्राम? ते दोस्तों ਉਹ ਸੀਗਾ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड, ठीक है। सो ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ए ऑप्शन जो है ਤੁਹਾਡੀ सही है, बिल्कुल याद रखना। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12 की कहता है, एक ना फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल जो है मैं तुहानू दस देना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री मॉनिटर्ड द फंक्शंस ऑफ द नैशनल रिवर कंजरवेशन डायरैक्टोरेट। तो जिहड़ा यह नैशनल रिवर कंजरवेशन डायरैक्टोरेट है किहड़ी मिनिस्ट्री के अंडर है पूछा गया है। तो ऑप्शन ने ए है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, बी है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, सी है साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, या डी है वाटर रिसोर्सिज मिनिस्ट्री। तो दोस्तों बी इहदा राइट आंसर है। एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जो है वह देखती है नैशनल रिवर कंजरवेशन डायरैक्टोरेट, ठीक है दोस्तों। सो इतने ऑप्शन की हो गया सही, फिर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हेयर। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज नैवर गॉट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। वो कहते कि इन्हां दे विचों जिहड़ियां चार ऑप्शंस ने किहड़ी वो जगह है जिथे कदी सीधी रेज नहीं पैंदी। दोस्तों ਇਹਦਾ एक रीजन भी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस दिना। हुण ऑप्शन साडे कोल ने श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई, त्रिवेंद्रमपुरम। हुण देखो ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ है कि आ अर्थ है, आ ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, आ नीचे इक्वेटर है और आ नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दोस्तों हुंदा की है कि जिहड़ी सूरज की डायरैक्ट रोशनी है वो इस रीजन के विचकार घूमती है, यानी कि ज़्यादा तो ज़्यादा सीधी जिहड़ी रोशनी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाएगी, फिर उस तो बाद वापस इधर नूं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाल तुर पेगी, फिर उस तो बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि सूरज की सीधी लाइट इहदे विचकार घूमती है पूरे साल दे विच, ठीक है जी। तो जून के महीने सीधी रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ते पै रही हुंदी है, दसंबर दे विच सीधी रोशनी जिहड़ी हैगी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ते पै रही हुंदी है, और मार्च ते सैप्टेंबर दे विच सीधी रोशनी इक्वेटर ते पै रही हुंदी है, पर इस तो अगे सीधी रोशनी नहीं जाती। हुण इंडिया के सेंटर चो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ठीक है, तो श्रीनगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो उपर है, तो इसका मतलब उत्थे कभी सीधी लाइट जो है वो नहीं जाएगी, थोड़ी जी तिरछियां जिहड़ियां किरणां ने सूरज दीयां उत्थे जाणगियां। सो इत्थे दा आंसर की हो गया? ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। सो आंसर तुहाडे सामने है श्रीनगर, इन्हें तुसीं याद रखना है, कारण की है वो भी मैं तुहानूं दस दिता, ठीक है। तो जे तुहानूं ये ना समझ आए, ये कंसैप्ट ना समझ आए, तो ये तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच दस सकदे हो, ठीक है। साडा जो चैनल है अनहद अचीवर्स अकैडमी, लाइक ते शेयर करते रहो, सबसक्राइब करते रहो, ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करो ताकि जिहड़ी तुहाडी इन्फॉर्मेशन है वो तुहाडे तक पहुँचती रहे। तो जिहड़े तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच अपने टॉपिक भी दस सकदे हो जिहड़े तुहानूं नहीं समझ आए या तुहानूं कोई डाउट है, आपां उस टॉपिक दे उत्ते भी वीडियो बनावांगे, ठीक है दोस्तों। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चे ये क्वेश्चन जिहड़ा है काफ़ी सौखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। तुहानूं पता ही है कि जिहड़े सर साइरिल रेडक्लिफ सीगे उन्हां नूं चेयरमैन बनाया गया सीगा कमीशन दा, जिन्हां ने इंडिया ते पाकिस्तान की वंड कीती सीगी। सो इस करके इंडिया पाकिस्तान की जिहड़ी बाउंड्री है उन्होंने रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है जी। ए ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर। सो नैक्सट है जी साडे को क्वेश्चन नंबर 15, एक ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द दुरंद लाइन। सो ए इज अफगानिस्तान इंडिया, बी इज इंडिया पाकिस्तान, सी इज इंडिया चाइना, एंड डी इज इंडिया एंड बर्मा। सो दोस्तों इंडिया पाकिस्तान तो आप हुणे पढ़िया, ये ऑप्शन तुसीं विचों छड्ड सकदे हो। आ तीन जिहड़ियां रह गईयां ने इहदे चों आपां आंसर लभना है। सो दुरंद लाइन जो है बच्चे मैं तुहानूं दस देना, इंडिया और अफगानिस्तान दे विच जिहड़ी लाइन है बॉर्डर है उहनूं कहंदे ने, तो इस करके आंसर इहदा सही की हो गया ए।
सो ए इज द राइट आंसर, इंडिया एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज द इंडिया परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री सिचुएटेड। ठीक है जी, दक्षिण गंगोत्री जो स्टेशन है वो कितने सिचुएटेड है? ऑप्शन ने ग्रेट हिमालयाज, इंडियन ओशन, सी एंटार्टिका या डी है अरेबियन सी। ठीक है दोस्तों, एंटार्टिका जो कि तुहानूं पता है कि साडे 7 कॉन्टीनेंट्स चो एक है, तो ये कित्थे है? बिल्कुल साउथ दे विच है। ठीक है, तो उत्थे यह दक्षिण गंगोत्री जिहड़ा साडे कोल परमानेंट स्टेशन जिहड़ा हैगा वो बनिया होया है। ठीक है, सो इहदा मतलब आंसर जिहड़ा हैगा सही आंसर की है? सी। ठीक है जी, सी इज द राइट आंसर, ये तुसीं याद रखना है। नैक्सट है जी क्वेश्चन नंबर 17, एक ही कहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर द बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। हाँ जी, केड़ी स्टेट है जी? ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਕਿਹੜੀ स्टेट जो है वो आले दुआले होर स्टेटां दे नाल जुड़ी हुई है सब तो ज़्यादा? तो बच्चे का आंसर की है? उत्तर प्रदेश। ਇਹਦਾ आंसर की है? उत्तर प्रदेश। ये तुसीं याद रखना है बच्चे। ठीक है, ये उत्तराखंड नाल भी जुड़ी हुई है, ये हिमाचल नाल भी जुड़ी हुई है, हरियाणे नाल भी जुड़ी हुई है। ठीक है, उस तो बाद साडे कोल चाहे मध्य प्रदेश होवे, ठीक है, या साडे कोल छत्तीसगढ़ होवे, झारखंड होवे, बिहार, सारियां दे नाल जुड़ी हुई है। तो ये तुसीं याद रखना है। ठीक है, चलो ਇਹਦਾ आंसर की हो गया? डी। नैक्सट है जी डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन। तो डंकन पैसेज जिहड़ी हैगी आ तुहानूं पता ही होएगा कि जिहड़ा साडे कोल अंडेमान ग्रुप है ਉਹਦੇ च जिहड़े साडे कोल आइलैंड्स ने, नॉर्थ अंडेमान है, फिर मिडल अंडेमान है, फिर साउथ अंडेमान है और फिर लिटल अंडेमान है। तो इन्हां दोनों के विचकार साउथ अंडेमान और लिटल अंडेमान दे विच जिहड़ी है वो की है? डंकन पैसेज है, तुसीं याद रखना है। ठीक है, सो ऑप्शन ने साउथ एंड लिटल, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड मिडल या डी है अंडेमान एंड निकोबार। ठीक है, सो साउथ अंडेमान और लिटल अंडेमान दे विचकार डंकन पैसेज नूं 11 डिग्री चैनल भी कहने आपां। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर कॉल्ड एज ट्विन सिटीज। ऑप्शन ने दिल्ली एंड फरीदाबाद, बी है मुंबई एंड पुणे, सी हैदराबाद सिकंदराबाद एंड डी इज बेंगलोर एंड मैसूर। ठीक है दोस्तों, सो ये जिहड़े चों सही जिहड़ा आंसर है वो है सी, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद नूं ट्विन सिटीज कहने आपां। लास्ट अज दा क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, सो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है आंध्र प्रदेश और डी है बिहार। ठीक है दोस्तों, सो इन्हां दे विचों आपां लभना है शुगर बाउल ऑफ इंडिया, तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। ये तुसीं याद रखना है। उत्तर प्रदेश जो है उन्होंने शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहने तो शुगर केन की भी जी प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा है, तो इस करके सो यदा सही आंसर की हो गया फिर ए ऑप्शन, ये तुसीं याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सो ये सीगे अज दे 20 MCQs। ठीक है, और जिहड़ा साडा चैनल है अनहद अचीवर्स अकैडमी उन्होंने जरूर सबसक्राइब करो, लाइक तो शेयर करते रहो। कोई भी तुहाडा जिहड़ा टॉपिक है जिते तुहानूं कोई कुछ डाउट है वो तुसीं पुछ सकते हो, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के उत्ते भी वीडियो बनावांगे। ठीक है दोस्तों, सो नैक्सट वीडियो लई वेट करो। ठीक है, उदों तक धन्नवाद, थैंक यू।